criticism from family members or other members. तो this you have to bear with it. जब मैं 4th अटेम्प्ट दे रही थी, जब मैं ट्रेनिंग के लिए दिल्ली आई हुई थी, मैं अपने बेटी से दूर थी. कभी कभी when mother is not there with the child, she gets irritated, sometimes annoying हो जाती है. Both my parents and my in-laws were like, you already have an established career, तो क्यों प्रिपरेशन करना है? Why are you not giving her the time that she needs, that she deserves? मेरे हस्बैंड या मेरे पेरेंट्स मारते थे, वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाते थे और मुझे फ़ोन में जब बोलते थे मैं यहाँ पे डिसअपॉइंट होकर डिप्रेस हो जाती थी. क्यों ही करना है ये सारा फैमिली को डिफ़िकल्ट पोजीशन में ला के. सम पीपल मे नॉट बी गेटिंग द सपोर्ट दैट यू वांट फ्रॉम योर फैमिली मेम्बर्स. मेरी डॉटर का हेल्थ इशू हो जाता है, मेरे पेरेंट्स का हेल्थ इशू हो जाता है. बहुत सारे विमेन ऐसे हैं जो हु वांट टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, बट बिकॉज ऑफ दीज रीजंस ओनली, दीज रीजंस भी हो सकते हैं और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती है. आई यूज्ड टू हैव माई अप्स एंड लोज. कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो. 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं. गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री. देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. फिल इट एंड स्केड्यूल अ सेशन. These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you. ये टॉपर्स आपको exactly वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है. They will guide you in answer writing, mocks and accessing them. Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker. Hello everyone, I am Dr. Kiranmayi Koppisetti. I have secured All India rank of 56 in Civil Services Examination 2021. This was my 4th attempt. So I am a working mother. I have a 7-year-old daughter, and I have done my MBBS and MS in General Surgery from Osmania Medical College. I have completed my MS in 2015. I gave my first attempt in 2018. So my journey for UPSC Civil Services preparation began in 2016-17 when I started taking the coaching for civil services. The inspiration I drew for civil services from my husband. He has prepared for civil services. Unfortunately, he couldn't qualify, but he is in state services. He is Deputy Commissioner in Commercial Taxes Department in the state government of Telangana. So he was the one who said that you can impact a more number of lives, and you can impact these lives in multi-dimensional ways by being a civil servant rather than by being a doctor. So जब उन्होंने ये बताया था, initially I was hesitant to change my profession and come to civil services, but eventually as I saw working of civil servants, even I got interested in preparing for civil services. And so after finishing my PG, my daughter was very young then. She was just 1 year old when I finished my PG, 1.5 year old when I finished my post graduation. So I took a break of 1 to 1.5 years before starting the actual preparation. So I started my journey in 2016-17 with coaching. I had taken coaching from an institute known as La Excellence in Hyderabad. तो यहाँ पे coaching मैंने इसलिए लिया था क्योंकि it was suggested by a friend who said that the teachers were the best. मतलब हर एक सब टॉपिक के लिए भी यहाँ पे बेस्ट ऑफ द फैकल्टी को लाया जाता था. एंड दैट वाज ट्रू टू अ लार्ज एक्सटेंट. मुझे कोचिंग बहुत अच्छी मिली थी, बट अनफॉर्चुनेटली बीच में माई मदर हैड अ हार्ट इशू एंड शी हैड टू अंडरगो बाईपास सर्जरी. तो उस वजह से आफ्टर 5 to 6 months ऑफ कोचिंग, एक 1.5 महीने का हिस्ट्री का मेजर पोर्शन बच गया था कोचिंग में, तो वो मैंने नहीं लिया था बिकॉज आई हैड टू बी विथ माई मदर. एंड बीइंग विथ माई मदर 2-3 months तो मेरे आई हैड टू बी विथ माई मदर. माई डॉटर वॉज जस्ट 2.5 years ओल्ड दैट टाइम. तो इन दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ही ऊपर आ गया था. तो मैंने सोचा प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा. आई एम ऑलरेडी क्लोज टू 30 एंड आई हैव ऑलरेडी एन एस्टैब्लिश्ड करियर. कि मैं ऑलरेडी जनरल सर्जन हूँ, तो एस्टैब्लिश्ड करियर भी है और इतने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के है, तो इसके साथ मेरा यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन नहीं होगा करके मैंने सोचा था. एंड आई स्टार्टेड डूइंग अ जॉब. मुझे ईएसआई में एक कॉन्ट्रैक्ट जॉब मिला था, तो आई स्टार्टेड डूइंग अ जॉब. आई वॉज गेटिंग अ हैंडसम सैलरी. But 3-4 months down the lane, जब everything got settled, my mother started working on her own. She was now in a position to be able to take care of my daughter, provided I had a help at home. तो मुझे लगा कि नहीं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, कोशिश फिर से स्टार्ट कर देते हैं.
तो मेरा मेन प्रिपरेशन जो फिर से स्टार्ट किया था 2017 अक्टूबर से स्टार्ट किया था, प्रीलिम्स था जून 2018 में। सो अराउंड 6 to 8 months बिफोर द प्रीलिम्स आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन सीरियसली। तो बिकॉज आई हैड दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एट होम, थोड़ा रेसिस्टेंस था घर वालों से। माई हस्बैंड वॉज दी ओनली वन हु वॉज ऑल द टाइम सपोर्टिव कि तुम करो सिविल सर्विसेज, तुम IAS बन पाओगी। ही बिलीव्ड इन मी, दैट बिलीफ इज़ वॉट हैज़ लेड मी टू टिल दिस स्टेज आई बिलीव। He was instrumental in giving me that moral and mental support. But घर से थोड़ा resistance था. Both my parents and my in-laws were like, you already have an established career. घर में बेटी की देखभाल करनी है, तो क्यों प्रिपरेशन करना है? Why are you not giving her the time that she needs, that she deserves? तो लेकिन हमारे एस्पिरेशंस हाई थे, मेरे और मेरे हस्बैंड के एस्पिरेशंस हाई थे, बिकॉज वी वांटेड टू बी द मेकर्स ऑफ our own transformation. We wanted to transform our lives in a bigger way, as well as make ourselves so much better, so that we will be able to impact the society in a better way. मुझे लगता था एक ही चीज़ कि ये छोटी सी ज़िंदगी है, इसमें जितना हम पॉसिबल हो उतना कोशिश करें to impact others' lives as well as make a big mark in the society. तो ये मेरी बचपन से ही ये ख्वाहिश थी, इसीलिए मैंने मेडिकल प्रोफेशन चुना था. आई वॉन्टेड टू बी इन द पब्लिक सर्विस फ्रॉम चाइल्डहुड, दैट इज़ वाई आई एंटर्ड मेडिकल प्रोफेशन. बट आई फेल्ट सिविल सर्विसेज गिव्स यू बेटर प्लेटफॉर्म एज वेल एज सोशल रिकग्निशन भी मिल जाता है इसमें. तो आई फेल्ट आई हैड टू गिव सिविल सर्विसेज. तो वॉट आई डिड फॉर सिविल सर्विसेज जर्नी, इनिशियली मैंने बोला जैसे कि मुझे 7-8 महीने ही थे प्रीलिम्स से पहले. तो इंस्टेड ऑफ, बिकॉज आई वॉन्टेड टू प्रूव माई सेल्फ इन द फैमिली फर्स्ट, आई फोकस्ड ओनली ऑन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन. तो 6 महीने बिफोर द प्रिलिम्स आई फोकस्ड एंटायरली ऑन प्रिलिम्स. मैंने प्रिलिम्स निकाल लिया था, आई कुड क्लियर द प्रिलिम्स, बट मेंस के लिए मेरी तैयारी अच्छे से नहीं थी. द जनरल स्टडीज़ आई नेवर डिड आंसर राइटिंग बिफोर माई प्रिलिम्स. तो आंसर राइटिंग में बहुत हेजिटेशन होता था मुझे. आई रिमेंबर द फर्स्ट डे आई वेंट टू राइट आंसर्स एट एन इंस्टीट्यूट. मैं 2-3 आंसर्स लिख के, मुझे लगा कि मेरे आंसर्स बहुत गंदे आ रहे हैं, मैं वो पेपर घर ले आई. आई डिड नॉट सबमिट द पेपर. 2-3 ही आंसर्स लिखे थे. आई थॉट आई वॉज राइटिंग वेरी बैड आंसर्स. तो दिस लेटर ऑन आफ्टर गेटिंग द रैंक, मुझे रैंक फिर भी मिला था, इसीलिए क्योंकि मैंने MS जनरल सर्जरी में कर रखा था. तो मेरे ऑप्शनल जो मेडिकल साइंस है उसमें बहुत अच्छे नंबर मिले थे. मुझे 307 नंबर मिले थे, 307 नंबर मिले थे. एसए में भी ठीक ठाक नंबर आ गए थे, बिकॉज माई इंग्लिश वॉज ओके-इश एंड ऑल्सो आई कुड प्रेजेंट माई थाट्स इन अ कंसिस्टेंट मैनर. अच्छे फ्लो में मैं अपने थॉट्स को प्रेजेंट कर सकती थी, जिसके वजह से मेरे एसए के मार्क्स भी ठीक ठाक आए थे. बट माई जनरल स्टडीज़ कोर्स वर वेरी लेस. ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट का एक्सपीरियंस था. तो फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग नहीं किया था. तो रैंक आया था 573 इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट. तो नेक्स्ट क्या था, क्योंकि मुझे IAS नहीं मिल रहा था. आई गॉट इनटू इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस थ्रू दिस रैंक. IAS नहीं मिला तो इमीडिएटली प्रीलिम्स था. प्रीलिम्स के लिए फिर से तैयारी हो गई. फिर मैंने क्या सोचा कि अब की बार मेंस में मैंने फ़र्स्ट टाइम बहुत कम पढ़ा है, तो बाय इंक्रीज्ड प्रिपरेशन मैंने थोड़े और रिसोर्सेस ले लिए थे. करंट अफेयर्स के लिए क्लासेस लगवा लिए और वो करंट अफेयर्स के क्लासेस कर लिए. मैंने सोचा कि ये ज़्यादा पढ़ लिया मैंने तो मेरे मार्क्स इम्प्रूव हो जाएंगे जनरल स्टडीज़ में. दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक आई डिड. आई थॉट बाय रीडिंग मोर एंड मोर कंटेंट, बाय डूइंग मोर एंड मोर कंटेंट, आई कैन इम्प्रूव माई स्कोर. बट आई डिड नॉट अगेन फोकस ऑन आंसर राइटिंग. इस बार भी मैंने बस एस्से और एथिक्स के लिए आंसर्स लिखे थे. जनरल स्टडीज़ 1, 2 and 3 आई डिड नॉट राइट एनी आंसर्स ड्यूरिंग द मेंस. दैट वाज द बिगेस्ट ड्रॉबैक. इस बार मेरा रैंक घट के आया. आई गॉट 633. पहली बार 573, इस बार 633. आई वॉज इन डिसअपॉइंटमेंट. क्या हो गया? आई शुड हैव गॉटन अ बेटर रैंक. आई वॉन्टेड टू गेट इन टू IAS. देखा तो रैंक घट गया. तो आई वॉज इन अ लॉट ऑफ डिप्रेशन. मतलब क्योंकि फैमिली सपोर्ट भी इतने सालों तक मेंटेन करना,
was very difficult job. So I was actually depressed. उसके बाद प्रीलिम्स नहीं हुआ मेरा, 2 महीनों के बाद जब रिज़ल्ट आया सेकेंड अटैम्प्ट का, इट वाज अगस्त 4, अक्टूबर 4 को प्रीलिम्स था थर्ड अटैम्प्ट का, तो 2020 का प्रीलिम्स था। वो प्रीलिम्स मैं क्लियर नहीं कर पाई क्योंकि आई ब्लाइंडली ट्राई टू इमिटेट some people and just read the current affairs more and more. I did not try to reinforce या री-रीड माई स्टैटिक्स अच्छे से। तो स्टैटिक को रिवाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है प्रीलिम्स में, जो मैंने नहीं किया था थर्ड अटैम्प्ट में, बिकॉज ऑफ विच आई कुडंट क्लियर प्रीलिम्स थर्ड टाइम। तो फोर्थ टाइम अभी मुझे टाइम मिल गया था, 1 ईयर ऑफ टाइम। ये 2 वजह से मिला था मुझे। पहले 2 अटैम्प्ट्स में मैं हैदराबाद में रहती थी, अब आई वॉज़ नॉट वर्किंग दैट टाइम, बट आई हैड हाउस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते थे मुझे, घर में खाना बना के मेरी बेटी को स्कूल को भेज के 10 o'clock 11 o'clock के अराउंड आई यूज़ टू गो टू लाइब्रेरी एंड आई यूज़ टू स्टडी इन द लाइब्रेरी टिल 9 PM। तो ये मैं कर लेती थी वहाँ पे भी। बट in my second attempt for the rank which I got into a service known as DANIX, Delhi and Andaman Nicobar Islands, as well as Lakshadweep and Daman Diu Dadra Nagar Haveli Civil Services. So I was in training in this service when I gave my 4th attempt. तो 2020 दिसंबर में जब मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, मैं आके ट्रेनिंग ज्वाइन हो गई थी दिल्ली में। यहाँ पे मेरे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थे, बट आई हैड वन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज़ ट्रेनिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी। ट्रेनिंग हमारा होता था 10 बजे से 5 बजे तक का, लेकिन आई हैड द रेस्ट ऑफ द टाइम एक्सक्लूसिवली फॉर माई सेल्फ विदाउट द टेंशन्स ऑफ द होम। I would like to take this opportunity to thank my family, especially my husband and my parents who took care of my child when I was away. तो 7 साल की बेटी को मेरे हस्बैंड और मेरे पेरेंट्स, मतलब सन इन लॉ स्टेइंग विद पेरेंट्स इन लॉ टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग। मतलब अपने पेट्रियार्कल सोसाइटी में माइंडसेट बहुत चेंज करना पड़ता है ऐसे सेटअप में लीड करने के लिए। यू हैव टू आंसर अ लॉट ऑफ पीपल एज टू वाई ही इज़ स्टेइंग विथ माई पेरेंट्स। आई ऑल्सो हैव टू आंसर, ही हैज़ टू आंसर हिज पेरेंट्स। तो ये सारा उन्होंने सैक्रिफाइस इसलिए किया ताकि आई कैन स्टडी हियर विदाउट टेकिंग द टेंशन ऑफ माई डॉटर। तो आई वॉन्ट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक देम। ये बहुत, जितना भी थैंक्स बोलूँ वो कम ही होगा, बट इट इज़ बिकॉज ऑफ माई फैमिली सपोर्ट दैट आई कुड स्टडी। तो 4th अटैम्प्ट में मैंने आई मेड अ सिस्टमैटिक एवेल्यूएशन ऑफ व्हाट माई मिस्टेक्स वर एंड आई ट्राई टू करेक्ट माई मिस्टेक्स, एंड उसी के वजह से मुझे अभी ये रैंक मिला है। So I just want to highlight what are the problems being a mother, being a married woman and being a mother. What were the problems that a woman could encounter during this journey? First and foremost, as I already told, family से resistance होता है, especially when you have a established career as a backup plan. मुझे already, मैं PG भी कर चुकी थी. If I had done only MBBS, maybe at least people would have accepted. But मैं PG भी कर चुकी थी, जिसके साथ मैं settle हो सकती थी. And I had a daughter, तो उसके responsibility भी देखना होता था. Time उतना नहीं मिलता जितना others को मिल सकता है. तो this was one issue, that is criticism from family members or other members. So this you have to bear with it. Second problem is not having enough time, क्योंकि responsibilities होते हैं, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है. थर्ड, मैं एक और प्रॉब्लम बताना चाहूँगी. मेरे केस में जो हुआ था, जब मैं 4th अटैम्प्ट दे रही थी, जब मैं ट्रेनिंग के लिए दिल्ली आई हुई थी, मैं अपने बेटी से दूर थी. तो दिस वॉज द टाइम व्हेन अदर्स वर टेकिंग केयर ऑफ़ माई डॉटर. माई पेरेंट्स एंड माई हस्बैंड वर टेकिंग केयर ऑफ़ माई डॉटर. कभी कभी व्हेन मदर इज़ नॉट देयर विद द चाइल्ड, शी गेट्स इरिटेटेड, समटाइम्स अनोइंग हो जाती है. When both the parents are there, one will be able to control. तो कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल होके उसको जब मेरे हस्बैंड या मेरे पेरेंट्स मारते थे, वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाते थे, और मुझे फ़ोन में जब बोलते थे, मैं यहाँ पे डिसअपॉइंट होके डिप्रेस हो जाती थी. क्यों ही करना है ये सारा फैमिली को डिफ़िकल्ट पोजीशन में लाके. लेकिन ये सारे प्रॉब्लम्स रहते हुए भी how I continued preparation. I actually did not want to highlight my problems. In all my previous videos, I have only told about how I got excellent support from my family members and how I used my time. But in this video, I am specifically mentioning about the problems that I encountered so as to इंस्पायर वुमेन हु आर फेसिंग सिमिलर सिचुएशंस. बहुत सारे women ऐसे हैं जो who want to prepare for this examination, but because of these reasons only
these reasons भी हो सकते हैं और भी बहुत सारे problems हो सकती है. Some people may not be getting the support that you want from your family members. Some people may not be having the amenities that I have got. But despite all these problems, none of us is perfect. I just want to say that none of us has a perfect life. All of us are imperfect. We are not having मैंने कभी भी perfect life नहीं lead किया है. मुझे भी बहुत सारा time waste होता था preparation के दौरान. Discipline maintain करना used to be very difficult because I used to have my ups and lows. Especially जब वहाँ पे कुछ issue हो जाता है, मेरी daughter का health issue हो जाता है, मेरे parents का health issue हो जाता है, और कभी भी झगड़ा घर में हो सकता है. ये सारे issues commonly होते रहते हैं. इसके साथ साथ वो डेली डिसिप्लिन मेंटेन करना डिफ़िकल्ट होता है. DKT UPSC CSC, अगर आप केवल सिविल सर्विस परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें DKT UPSC CSC चैनल. यहाँ आपको टॉपर्स के वीडियो रैंक के हिसाब से अरेंज मिलेंगे. चैनल के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं. यही प्रॉब्लम्स बहुत सारे लोग आप भी एनकाउंटर करते होंगे, तो इन्हीं को मैं बताना चाहती हूँ कि डिस्पाइट दीज इम्परफेक्शंस यू शुड हैव अ मोटिवेशन टू डू. तो एक दिन झगड़ा हुआ, एक दिन कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो ठीक है, हैव अ सपोर्ट सिस्टम विच कैन सपोर्ट यू साइकोलॉजिकली. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच नॉट ओनली अ वर्किंग वुमेन, एनी एस्पिरेंट वुड नीड. तो मुझे लगता है मेरे सपोर्ट सिस्टम थे मेरे हस्बैंड और मेरे फ्रेंड्स. ये जब भी मुझे डिसअपॉइंटमेंट हो जाता था, मैं इनसे बात करती थी. उनसे बात करने के बाद थोड़ा आराम मिलता था, बट स्टिल इट वुड टेक अवे 1 or 2 days ऑफ माई टाइम. बट आई यूज टू एक्सेप्ट इट एज सच. ठीक है, चला गया, जो बचा है उसको यूज़ करेंगे. सेकेंड थिंग विच यूज टू हेल्प मी कोप अप विद दिस स्ट्रेस वॉज जर्नल राइटिंग. एक जर्नल, जब भी मुझे ऐसा डिप्रेस सिचुएशन होता था या घर के बारे में बहुत स्ट्रेस ले लेती थी, आई यूज टू टेक अ जर्नल एंड स्टार्ट राइटिंग कि अभी मेरे पास क्या ऑप्शंस है, वाई डिड आई स्टार्ट दिस जर्नी, अभी मेरे पास क्या ऑप्शंस है, अभी जो प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ. वेन एवर यू राइट डाउन दीज थिंग्स ऑन एनी पेपर, यू विल गेट अ सेट ऑफ ऑप्शंस टू डील विथ. मतलब ऑप्शंस हमें आ जाएंगे. व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट इट वी कीप वरीइंग, बट जब हम लोग पेपर पर लिखना स्टार्ट कर देते हैं, वी विल बी एबल टू राइट दी ऑप्शंस एंड वी विल बी एबल टू चूज़ द बेस्ट ऑप्शन आउट ऑफ दोज ऑप्शंस, क्योंकि ऑप्शंस दिख रहे होते हैं. तो आई थिंक जर्नल राइटिंग हैज़ हेल्प मी इन ओवरकमिंग दीज डिप्रेशन फेजेस मेनी टाइम्स. देन सेकेंड थिंग आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट, ये हो गया, हमने बात कर लिया कि डिप्रेशन होता है, लो होता है, बहुत सारी सोच होती है घर के बारे में, घर वाले कुछ बोल देते हैं, तो बता देना कि मेरी ये एम है, उसके लिए ये मैं करना चाहती हूँ. तो सेकेंड थिंग आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट इज़ हाउ टू मैनेज टाइम in with household responsibilities, क्योंकि you have to accept the fact that you are getting lesser time due to all these things, all these responsibilities that you have. Initial 2 years of my preparation I had family responsibilities. Next 1.5 years of my preparation I had responsibility of job या फिर training, तो मुझे वहाँ जाना पड़ता था. तो how did I manage time? When I was with my family, I delegated my responsibility of my daughter to my parents और घर के काम के लिए मेड रख लिया. तो डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा करना पड़ेगा व्हेन वी हैव टू, बिकॉज प्रिपरेशन के लिए फोकस टाइम ज़रूरी होती है. मतलब एटलीस्ट 6 से 8 घंटों का फोकस टाइम बहुत ज़रूरी होता है. उस टाइम में आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहना है. उस टाइम में आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट कर सकते हो. मेरी बेटी तो सुबह स्कूल को चली जाती थी, तो आई यूज़ टू यूज़ दैट टाइम फॉर गोइंग टू द लाइब्रेरी. Okay, this was what I did in the first 2 years. लेकिन some of you people may say कि हमारे पास दिन भर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम किसी और को सौंप नहीं पाते हैं, तो हम क्या करें. तो आई यूज़ टू गो टू लाइब्रेरी. मुझे तो इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ था. इवन व्हेन आई वाज इन डायनिक सर्विस, मतलब ट्रेनिंग में भी थी, तब भी मुझे टाइम मिल जाता था, क्योंकि सुबह मैं 4 बजे उठ के 8 बजे तक पढ़ लेती थी, और उसके बाद ट्रेनिंग से आने के बाद भी 2-3 घंटे आई यूज़ टू take for studying. So 6 to 7 hours of study I could do even while on training, because I used to use the time when nobody disturbs me. So second pillar in utilizing time, first one was delegating the responsibilities. Second pillar in utilizing the available time is use the time when nobody disturbs you.
तो ये मैं बहुत सालों से पढ़ाई कर रही हूँ, पहले भी MBBS MS की तैयारी की थी। इस एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ कि जब सारे लोग सो रहे होते हैं तब इज़ द बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर, क्योंकि तब कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। दिस कुड बी ईदर इन द नाइट, 9 o'clock को स्टार्ट करके मैं 2-3 बजे तक पढ़ती थी जब मैं फाइनल ईयर MS की पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि मेरी बेटी तब 5 महीनों की थी। सो आई वुड नॉट गेट टाइम इन द मॉर्निंग बिकॉज द बेबी वॉज रियली वेरी स्मॉल एंड आई हैड टू गिव टाइम। बट मेरे एग्ज़ाम्स भी थे, तो मैं रात के 8-9 बजे आफ्टर मेकिंग हर स्लीप आई यूज़ टू स्टार्ट स्टडिंग एंड आई यूज़ टू स्टडी टिल 2-3 6 आवर्स की स्टडी मेरी हो जाती थी ऐसे। अगर आप नाइट पर्सन नहीं हो तो मॉर्निंग, बिकॉज नाइट में वी आर एग्जॉस्टेड एंड वी आर नॉट एबल टू फोकस सो मच। मॉर्निंग टाइम इज़ बेटर। डायनिक्स में मैं मतलब जब यहाँ अभी प्रिपरेशन कर रही थी, मेरा 4 to 8 का टाइम बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम होता है, वेयर यू कैन गिव कंटिन्यूस 4 to 5 आवर्स ऑफ टाइम फॉर स्टडीइंग। तो इस टाइम में अगर आपको घर के कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है तो प्लीज़ आई वुड सजेस्ट टेक सम हेल्प. Don't try to do everything by yourself. You need to take the help of others if you want to balance everything. क्योंकि we are not superhumans. We are normal humans. We are not superhumans. तो help दूसरों की ज़रूरी है. जहाँ तक ले सको उतना ले सको. अगर नहीं मिल रहा है तो जब लोग सो जाते हैं वहाँ पे squeeze in करके time utilize करो. So this was the second thing which I wanted to tell about time management along with the responsibilities. Third thing I wanted to tell कि अभी फिर भी मैं 4 घंटे ही दे पा रही हूँ फोकस टाइम, बाकी मुझे खाना बनाना पड़ता है, दूसरा काम कुछ करना पड़ता है। तो ऐसे लोगों को मेरा ये सजेशन होगा कि व्हेनेवर यू आर डूइंग रिपीटेटिव एक्टिविटीज़ लाइक घर। कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो। 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इट एंड स्केड्यूल अ सेशन। These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you. ये टॉपर्स आपको exactly वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है. They will guide you in answer writing, mocks and accessing them. Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker. खाना बना रहे हो या फिर ड्राइव में मतलब यू आर गोइंग टू वर्क ऑन इन अ कार, ऐसे टाइम में यू कैन डू 2 things. वन थिंग, वीडियो लेक्चर्स है आजकल यूट्यूब में बहुत सारे हैं, या फिर कुछ सब्सक्रिप्शन आपने ले लिया कोचिंग इंस्टीट्यूट का. मेरा लर्निंग स्पेस डिजिटल वेबसाइट का सब्सक्रिप्शन हुआ करता था. मैं वहाँ से करंट अफेयर्स सुन लेती थी और जो भी मेरे कंटेंट्स वीक होते थे, सुनते सुनते काम कर लेना, सुनते सुनते ट्रैवल कर लेना. This is one thing which you can do while doing other activities. What is the second thing that you can do? You have to do active recollection. मेरा ये मानना है कि रिविजन का मतलब रिपीटेड रीडिंग ऑफ द टॉपिक नहीं होता है, एक्टिवली रिकलेक्शन करना होता है. मतलब यू हैव टू एक्टिवली याद करना होता है कि आपने कल क्या पढ़ा था. तो 4 घंटा जब आपको फोकस टाइम मिला था, आपने कुछ पढ़ा है, तो ये 2 घंटे जब आप कुछ और काम कर रहे हो उसको एक्टिवली रिकलेक्ट करने की कोशिश करो कि मैंने उसमें क्या क्या पढ़ा है. तो दिस वॉज द वे आई यूज टू मैनेज माई टाइम वेन एवर आई हैड शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम. और फिर मेंस से आई थिंक 20 days बिफोर माई मेंस आई हैड टेकन लीव फ्रॉम द सर्विस सो एज टू गिव मोर फोकस्ड प्रिपरेशन. तो टाइम मैनेजमेंट फॉर अ वर्किंग वुमेन, आई वांटेड टू फोकस ऑन दिस, क्योंकि वर्किंग वुमेन एज वेल एज फॉर women with kids, I wanted to focus more on this because this is where majority of the questions for working women raise कि हमें टाइम उतना नहीं मिलता है. तो mainly use the time where everybody else is sleeping. Use the time while you are doing other chores, either by listening to video lectures or by active recollection of what you have already read. Use time effectively. जब मोटिवेशन कम हो जाता है या फिर कोई कुछ बोल देता है तो हैव अ सपोर्ट सिस्टम इन हैंड. अगर कोई सपोर्ट सिस्टम भी नहीं है तो you are your best support system. I'll tell you, just look into the mirror and smile at yourself. You will understand how confident a woman you are. You have come till this stage, you have been courageous enough to attempt this exam. That itself shows that you are a woman of courage. You are a woman having so much of strength. बस मिरर में एक बार अपने आप को देख के स्माइल कर लो. You will know the power of yourself. Women, I say that we are very powerful. We can do anything. सपोर्ट मिलेगा, अच्छी बात है. सपोर्ट नहीं भी मिलेगा तो भी resort to journal writing. Be your own psychological boost.
और भी प्रॉब्लम हो रहा है तो डोंट हेजिटेट टू टेक हेल्प. साइकोलॉजिकली अगर डिप्रेशन हो रहा है तो दिस इज़ अ सजेशन विच आई यूजुअली ट्राई टू गिव टू एवरीवन बीइंग अ डॉक्टर ऑल्सो, क्योंकि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जो है बहुत कॉमन हो गए हैं. तो you seek psychologists or psychiatrist support if you are going if you feel that you're going through depressive phases. सभी को ये मेरी रिक्वेस्ट होगी कि don't ignore any psychological symptoms very don't take them very lightly, seek help. तो I just wanted to say कि we women can do anything if we have willpower to do, if we have family support, if we do things in a systematic manner, utilize time in an efficient manner, just have the strong willpower to do, just plan yourself properly. हाँ, imperfections होती है, but even with imperfections you can try to overcome them. Let them be, let any imperfection happen in your life. एक दिन चला जाएगा, चले जाने दो. 2 दिन चले जाएगा, चले जाने दो. रेस्ट ऑफ द टाइम डोंट लेट इट इम्पैक्ट योर लाइफ. डोंट लेट एनीथिंग इम्पैक्ट योर लाइफ फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन. ट्राई टू कोप अप. You will do wonders. Thank you, DKT, for giving me this opportunity to talk about my journey. Thank you.